Assalamu alaikum everyone. So our today's topic is partnerships. We'll be going to partnerships के partnership में आज ये वाली video will be covering the intro basics partnership की theory, what is partnership, उसमें होता क्या है, how many partners are there, how many should be there, what documents are to be made, advantage and disadvantage of partnership. We'll talk about unlimited and limited liability. We'll talk about mutual agency. We'll talk about components of partnership agreement and what is a partnership agreement basically. So let's start. So partnerships होता क्या है? Partnerships होता है कि जब दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चलाने का सोचें and they share their profit and loss based on their agreement. सही है? Basically partnership is when two or more people agree to run a business and share profits and loss according to their agreement. सही है. पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं? पार्टनरशिप में 3 टाइप के बिजनेस होते हैं. एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, एक बैंकिंग बिजनेस होता है, सही है, बैंकिंग होता है, और एक होता है सर्विस सेक्टर बिजनेस. सही है. इसमें आपका मिनिमम 22 होते हैं टिल मैक्सिमम 20. इससे ज़्यादा यू कांट. अच्छा, वी विल बी डूइंग दी यूके वर्जन. यूके पॉलिसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं. सही है. सो हम ये यूके की बात करें. दिस कुड वेरी अकॉर्डिंग टू कंट्रीज बट वी आर राइट नाउ वी आर स्टडिंग ए लेवल्स. सो हम यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्योंकि यूके के बोर्ड का पेपर हम देते हैं. ओके. इन बैंकिंग देयर इज मिनिमम ऑफ 2, मैक्सिमम ऑफ 10, नॉट मोर देन दैट. एंड सर्विस सेक्टर में मिनिमम 2 and maximum unlimited. It's your choice how many maximum members you want to keep. सही है. What do these partners do? They run a legal business. सही है. Sharing profits plus losses according to agreement. सही है. अच्छा, they have a mutual agency. What is mutual agency? Let's talk about it. Mutual agency ये होती है कि अगर एक पार्टनर ने कोई बिजनेस डिसीजन ले लिया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सो सारे पार्टनर्स आर लायबल एंड लीगली बाइंडेड टू बी ऑन दैट डिसीजन. यानी अगर उनको नहीं भी लेना था वो डिसीजन, if they were not supporting the decision but one partner has signed the document और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो बाकी पार्टनर्स भी बाइंडेड हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो फॉलो करें. इफ़ दे डोंट फॉलो दैट कॉन्ट्रैक्ट दे विल बी लीगली पकड़े जाएंगे वो लोग. ओके. सो इसको लिख लेते हैं. पार्टनर्स रिप्रेजेंट ईच अदर in business decisions and any contract entered into by a partner is legally binding for others. आगे चलते हैं. कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं इन अ बिजनेस? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. नंबर 1 एक्टिव. सही है. या एग्जीक्यूटिव, एक ही चीज़ होती है. दिस पार्टनर इज़ बेसिकली द वन हु इज़ इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द बिजनेस. सही है. Second, non-executive, sleeping. या dormant. ये एक किस्म का और पार्टनर. अच्छा, who is this guy? This guy is basically the investor कह लो. He could be an investor. He invests funds, gets a share of profit or loss, but is not involved. He is not involved in the decision-making process. सही है. So he can have a limited liability based on agreement of other partners. What is limited and limited liability? Let's talk. Limited liability वो होती है मतलब your
personal assets are not at stake when you have a limited liability. The investment you make is only at stake when you have a limited liability. मतलब जितना पैसा लगाया है in the business, that's only ऐसे खाली अगर $1,000 if you have put on $1,000 in a business, then that $1,000 is at risk, not your personal property. Whereas in unlimited liability, if you have put $100 even, but you have a unlimited liability, so if the business is doing something wrong and is charged a 100,000 bill, so उससे और आपके पास पैसे नहीं है बिजनेस का इतने देने के लिए, सो योर पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो एट स्टेक. उनके थ्रू आपके जो भी बिजनेस की क्रेडिट होगी, जो भी पे करना होगा वो पे होगा. योर पर्सनल एसेट्स आर एट स्टेक व्हेन यू हैव एन अनलिमिटेड लायबिलिटी. सही है, लिख लेते हैं इसको सही से, अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी को. सो अनलिमिटेड लायबिलिटी is when a business goes bankrupt, then the personal assets of the partners are also sold to recover the dues. Whereas limited liability में क्या होता है, not involve the risk of losing personal assets in case of bankruptcy. Okay, moving on to the advantages and disadvantages of partnerships. सही है, पहले advantages की बात करेंगे, उसके बाद हम disadvantages की बात करेंगे. So what are advantages of partnership? बात करते हैं इसके ऊपर. So यहाँ लिखा है advantages. Number 1, more capital is available. सही है, make sense. जब ज़्यादा लोग होंगे तो more capital available. Number 2, burden is shared. Okay, make sense. आप एक बंदा काम करे उससे बेहतर 3 बंदे काम कर लें. सही है, the workload is divided between the partners. Number 3, losses are shared. ज़ाहिर सी बात है, अब when a business is 3 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने they have made an investment together, and if there is any loss, so everyone will bear it. Okay, according to the partnership agreement. Number 4 पे आता है आपके पास limited liability for some partners. Limited liability for some partners according to partnership agreement. Number 5 पे आएगा expertise is shared. ज़ाहिर सी बात है, if one person is good at dealing with customers, if one person is dealing with good with dealing accounts और टेकिंग बुक कीपिंग का काम, या फिर एक पर्सन है जो आपको मार्केट जाके सामान लेके देता है, तो एक्सपर्टीज़ कैन बी शेयर्ड. एवरी पार्टनर कैन यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ टू ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट मेक देयर वर्क एफिशिएंट. सही है, fewer legal formalities compared to companies. अच्छा, आगे चलते हैं. आगे हम डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं. डिसएडवांटेज में क्या होता है कि दिस इज़ एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस. व्हाट इज़ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस? कि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है ये. सो बिजनेस कैन नॉट रिप्रेजेंट itself in the court. अगर बिजनेस का कोई इशू होगा तो जो ओनर्स और जो पार्टनर्स उसकी जगह बिजनेस को रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे. they will go in the court and face anything that is going wrong. Okay, so unincorporated business, unlike ये corporated business होता है, incorporated business होता है वो वाला जो कंपनी होती है बेसिकली जिसके शेयर्स का लिस्टेड कंपनी. That company is basically a separate legal identity in an economy. तो वो एज अ पर्सन खुद को रिप्रेजेंट करती है कंपनी इन एनी लीगल
प्रोसीडिंग्स। नंबर 2 पे आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने पहले बात करी कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नंबर 3 पे आएगा स्लो डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, व्हेन देयर आर 4 डिफरेंट पीपल वर्किंग टुगेदर उनका डिसीजन मेकिंग भी स्लो होगी। नंबर 4 पे आएगा आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन पार्टनर्स। सबका अलग थिंकिंग प्रोसेस होगा तो उनके आर्ग्यूमेंट भी होंगे बीच में एक साथ। नंबर 5 पे आएगा ट्रस्ट इश्यूज़, म्यूचुअल अंडरस्टैंड म्यूचुअल एजेंसी का मसला होगा कि अगर एक ने आपका किसी उसमें साइन कर लिया है तो आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा फिर। नंबर 6 है आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, व्हेन पार्टनरशिप इज़ ब्रोकन, लाइक इफ़ वन पार्टनर डाइज या फिर वन पार्टनर लीव्स द बिजनेस, सो द बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू, द पार्टनरशिप कैन नॉट कंटिन्यू फॉरवर्ड, it has to be broken, the agreement has to be finished, cut off, and a new agreement has to make legal work थोड़ा सा बढ़ जाता है, lack of continuity। सही है। then there is profits are to be shared। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा और 4 लोगों के बीच में you have to share, that becomes a disadvantage for you। सही है। basically these were the disadvantages and advantages of partnership। What do you need, what components do you need to make a partnership agreement? Simple components of partnership agreement are very simple, we'll just go through them। पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाने के लिए क्या क्या आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। नंबर 1 कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। नंबर 2 स्टेटस ऑफ ईच पार्टनर, क्या एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, स्लीपिंग है नहीं है। सही है, कौन सा पार्टनर स्लीपिंग है कौन सा नहीं है। नंबर 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो डिफाइन करके कि कितना कितना शेयर, अगर प्रॉफिट इतना होगा तो किसका इतना शेयर होगा, इतना इसका शेयर होगा। दैट कुड बी इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, 60-40, 30-70 कुछ भी हो सकता है। सही है। नंबर 4 सैलरी बोनस कमीशन ऑफ पार्टनर, सैलरी कितनी देनी है, बोनस कितना देना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, या कमीशन कितना देना ऑफ पार्टनर्स, देना भी है नहीं देना डिफाइन करना ज़रूरी है। नंबर 5 लिमिट्स ऑफ ड्राइंग, लिमिट ऑफ ड्राइंग्स। सही है। नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो होता है कि आप ड्राइंग किसने जितने पार्टनर ने इसी करी है उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करा उस पर उसको इतना इंटरेस्ट ईयर का मिलेगा। नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर का भी ज़रूरत हो, पार्टनर ने कोई लोन दे दिया है बिजनेस को, तो उसको भी उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। सही है। अच्छा, व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और कोई लीगल काम होता है और लीगल मसला होता है और अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, सो व्हाट डू पार्टनर्स डू, पार्टनर्स ये तो गवर्नमेंट ये करती है, बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है कि देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ 5% इंटरेस्ट ऑन लोन। सही है, पार्टनर्स लोन, एंड देयर इज़ इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बस, अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है व्हेन यू आर डूइंग अ पार्टनरशिप, और अगर कोई लीगल मसला होता है और पार्टनरशिप में आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, सो गवर्नमेंट विल डू कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सही है। दे वोंट लुक एट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और एनीथिंग क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना है, दे विल जस्ट से इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मूविंग फर्दर, हम इस वीडियो में तो बात नहीं करेंगे फॉर्मेट्स की, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट आई लेट यू नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी मेड इन अ पार्टनरशिप क्वेश्चन, या पार्टनरशिप में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 appropriation account. This is as same as sole trader वाली इनकम स्टेटमेंट। सही है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन के बाद आपको करंट अकाउंट बनाना होता है। नंबर 4 you have to make statement of financial position. Number 5 capital account।
ये भी सोल ट्रेडर वाली होती है, ये भी आपको आती है, तो आई वोंट डिस्कस इन दिस, बट लेकिन दीज 5 थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.